بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ چودواں سپارہ، اس میں سورہ حجر اور اس کے بعد سورہ نحل دونوں مکمل پڑھی گئی ہیں۔ سورہ حجر کی شروع میں کفار کی حالت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ کفار ایک وقت آئے گا کہ وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین، اور ندامت ہوگی انہیں اپنے کفر پہ۔ جب وہ دیکھیں گے کہ جہنم سے لوگ نکلے جا رہے ہیں جنت کی طرف، کیونکہ جہنم میں گناہگار مسلمان کچھ جائیں گے، کئی ایسے بھی ہیں جو بہت لمبا عرصہ پڑے رہیں گے جہنم میں، لیکن پھر بھی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جب کفار یہ چیز دیکھیں گے پھر تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان تو ہوتے۔ یعنی مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، چاہے کتنا ہی گناہگار گمراہ کیوں نہ ہو، کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کیا میں مسلمانوں کو اور کافروں کو جو مجرم ہیں ان کو برابر بنا لوں؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسی سوچ رکھتے ہو کہ مسلمان اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ مسلمان چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو کافر کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کافر چاہے ہم کتنا ہی شریف النفس ہمارا والد صاحب کیوں نہ اللہ نہ کرے، دادا کیوں نہ ہو، اپنے خاندان سے قریبی خون کا کیوں نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر کس کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا ابو طالب کے لیے دعا کرنے کی۔ کتنا شریف النفس، کتنا مدد کی مسلمانوں کے احسانات ہیں مسلمانوں پر، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن توحید ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر توحید کوئی شخص قبول نہیں کرتا، توحید اسلام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا مسلمان، مطلب اہل توحید۔ ہاں اہل توحید گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، 72 فرقے بھی اہل توحید کے ہی ہیں۔ جب تک توحید پر ہے بندہ وہ مسلمان ہے، چاہے کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی فاسق فاجر کیوں نہ ہو جائے، ظالم کیوں نہ ہو جائے۔ تو مسلمان ہونے کی بنا پر اللہ تعالی جہنم سے نکال دے گا ایک دن۔ شفاعت، نبیوں کی شفاعت ہوگی، فرشتوں کی شفاعت ہوگی، اولیاء کی شفاعت ہوگی، لوگ نکلیں گے جہنم سے، پھر بھی بہت بڑا طبقہ جہنم میں رہ جائے گا، سب اللہ کی مغفرت سے نکلیں گے۔ وہ کن کا ہوگا؟ مسلمان۔ کافر کے بارے میں چاہے کتنا ہی شریف النفس تھا دنیا میں، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نیک کام کرتا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا، توحید نہیں قبول کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، ہمیشہ ہمیشہ، اور اس زندگی کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، مسلمانوں کو
काफिरों को, जिन्नों को, इंसानों को हमेशा हमेशा रहने के लिए पैदा किया है। दुनिया की जिंदगी आरजी है। दुनिया से जब कोई बंदा फौत हो जाता है वो एक अलग जिंदगी की तरफ चला जाता है, उसके बाद फिर एक अलग जिंदगी। जो एक दफा पैदा हो चुका है फिर वो दोबारा आदम की तरफ नहीं जाता, हम अपनी अबदी जिंदगी की तरफ जा रहे हैं। हम ये आरजी जिंदगी है और इस आरजी जिंदगी की बिना पर हमारी आखिरत बनेगी। अचानक किसी को उठा लिया जाता है हम में से, अचानक। कितने लोग हमारे साथ पिछले माह रमजान में थे, अचानक उठा लिए गए। हमारे रिश्तेदारों में से थे, दोस्त अहबाब में से थे, हमारे नमाजी थे। अल्लाह ताला ने उनका वक्त पूरा कर दिया। अब वो क्या, कहाँ हैं? अपनी अलग जिंदगी में हैं। मुसलमान बहुत खुश नसीब है। और सब इसके बाद सबसे बड़ी खुश नसीबी है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर गामजन रहे। जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता सिरात मुस्तकीम उस असल इस्लाम है और उसको सुन्नत कहते हैं। हम जो कहते हैं ना सुन्नत की दावत, सुन्नत की दावत का मतलब ये नहीं है कि किसी के इख्तिलाफी मसाइल में किसी पर फतवेबाजी करें हम, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। सुन्नत का मतलब है असल इस्लाम, उस इस्लाम की तरफ बुलाना जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हैं। फिर भी अगर कोई मुसलमान है, चाहे कितना ही गुमराह क्यों ना हो, कुफ्फार से कई दर्जे बेहतर है। हाँ, उस मुसलमान के साथ जो गुमराह होते हैं, हमारे ऊपर कुछ फ़राइज़ और जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि उसको दावत देना, उसकी गुमराही को बेनकाब करना, और अगर वो हमारे बच्चों, हमारे अवाम और लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है, गुमराह कर रहा है, तो लोगों को ख़बरदार भी करना उलमा का फ़र्ज बन जाता है बाज़ औक़ात कि फ़लाँ बंदे से बच करो, ये बिदती है, ये गुमराह है। ये जितने उलमा अहले बिदत हैं मुसलमान ही हैं, लेकिन उनका नाम लेकर हमारे उलमा ख़बरदार करते हैं कि नहीं करते कि इसके अंदर बरेलवियत की बिदत पाई जाती है, इसके अंदर देवबंदियत की बिदत पाई जाती है, इसके अंदर सूफियत की बिदत है, उसके अंदर खारिजियत की बिदत है, उसमें शीयत की बिदत है। ये हमारा दाखिली मामला है, लेकिन मुसलमान कुफ्फार के मुकाबले में अफजल है, चाहे कितना ही गुमराह क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने ये वईद सुनाई है कुफ्फार को, और कि ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ, कि छोड़ दो इनको, खाएं, मज़े उड़ाएं। और दूसरी जगह फरमाया कुल तमत्तऊ फ़इन्न मसीरकुम इलन्नार। कुफ्फार को कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कह दीजिए, हाँ मज़े उड़ा लो, तुम्हारा अंजाम जहन्नुम है। और दूसरी जगह फरमाया कुलू व तमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, खा लो, मज़े उड़ा लो, ये थोड़ी ज़िंदगी है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, जबकि जितना मर्जी रह लो यहाँ। इन्नकुम मुजरिमून, तुम मुजरिम लोग हो। यानी ये किन को कहा जा रहा है? कुफ्फार को, जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। फिर आगे उनकी बदबख्ती ये बताई, वयुल्हिहिमुल अमल, उनको जो लंबी आरजुएं हैं तौबा और रुजू से गाफिल करके रखती हैं। कुफ्फार को उनकी जो लंबी आरजुएं हैं, दुनिया के अंदर उनको सबज़ बाग नजर आते हैं। शैतान के बारे में अल्लाह ताला ने बताया, वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, शैतान कुफ्फार के लिए भी और गुनाहगार लोगों मुसलमानों के लिए भी बुरे अमाल को मुज़य्यन करके दिखाता है, सबज़ बाग दिखाता है, और वो इसमें ज़िंदगी गुजार देता है। अपनी छोटी सी कोताही में, गुनाह में जिंदगी, लंबी ज़िंदगी गुजार देता है। फिर अचानक किसी को ख्याल आता है तो सोचता है कि इतना लंबा अरसा मैंने तौबा ही नहीं की, और ये भी अल्लाह की तौफीक से हो ख्याल आता है, वरना
तौबा को कल पर छोड़ना ये बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है। और ये कुफ़ार की खसलत बताई है कि उनको लंबी लंबी आरज़ुएँ, उनके प्लान और उनको ये उनकी गफलत, उनकी ये दुनिया के सब्ज़ बाग उनको तौबा से गाफिल रखते हैं। फसौफ यअलमून, अन करीब उनको पता लग जाएगा। और इसमें हमें इबरत यानी हमें भी डराया जा रहा है कि जो ही अचानक हम में से कोई दुनिया का सफ़र ख़त्म करता है, फिर अमल का मैदान ख़त्म। अब जो कुछ भी पूंजी लेकर जाता है बंदा इस यहाँ दुनिया से, वो क्या है? अमल है। कोई भी इंसान इस दुनिया से जब निकलता है, और निकलने का कोई पता नहीं किसको कब निकलना है, यहाँ से अचानक निकलना है, और वहाँ हमारी ज़िंदगी इंतज़ार कर रही है। हमारी एक दुनिया अलग है, वहाँ मरने के बाद की क़यामत से पहले की दुनिया की बात कर रहा हूँ। बरज़ख की ज़िंदगी जिसको कहते हैं, वो इंतज़ार कर रही है हमारी। वहाँ बहुत अरसा हमने रहना है, और अचानक यहाँ से निकलना है। और क्या लेकर जाएंगे? जो दिन रात हम सोचते हैं और अमल करते हैं और बोलते हैं, ये सारे अमल बस हम कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, कर रहे हैं हम। ये अमल हमसे सादिर हो रहे हैं और ये रिकॉर्ड में आ रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि ये जो तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, यानी जो हम सादा अल्फाज में कहते हैं, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। इबादत क्या है? वो हमारे अमाल हैं। तौहीद इबादत का मकसद ये है कि हम अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, क्योंकि हमने जब इस दुनिया से निकलना है तो सिर्फ अमल लेकर जाना है। वो हमारे तैयार हो रहे हैं। आप भूलें ना भूलें, ऐसा नहीं होगा कि आप अपना रिकॉर्ड यहाँ भूल जाएं, आपके साथ ही जाएगा। वो तैयार हो रहा है। उन आमाल को जो दुरुस्त करने वाली चीज़ है वो तौहीद है, जिसका जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह में है। इसकी अहमियत यहाँ से आप इस अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी और रसूल आए हैं, अपनी अपनी कौमों के बिगाड़ का इलाज उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह से किया है। ये कोई इतनी ख़ास कोई तालीमात हैं ये, और इसका खुलासा ये है, ये नोट कर लें, ये जो तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसको हम इस्लाम तौहीद है, तौहीद इबादत जिसे हम कहते हैं, इसका फोकस ही बंदों के अमाल पर है। तौहीद उलूहियत या तौहीद इबादत जिसमें शिरक जो है इस्लाम से खारिज कर देता है, वो क्या है कि अपने अमाल को अल्लाह के लिए खालिस करना। अब वो कैसे होंगे अमाल अल्लाह के लिए खालिस के, ताकि वो हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए फ़ायदा मंद बन जाए आखिरत में। अल्लाह के नबी की तालीम जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इतनी बाबरकत है और इतनी जामे है कि आप सुबह निकलते हैं ऑफिस में, शाम को वापस आते हैं, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई कहीं, आप जहाँ भी जाते हैं, आपका निकलना, वापस आना, आपका सोना, आपका जागना, आपका मेहनत करना, आपकी नमाजें पढ़ना, ये सारे, जिसको आप कुछ कामों को आप इबादत समझते हैं और कुछ कामों को आप दुनियादारी समझते हैं, आपकी सारी ज़िंदगी को वज़नी बना देगी ये तालीम। देखें, इसको मुख्तसर तौर पे समझाने की कोशिश करूँगा। पहली बात यह कि हमारा फोकस अमल पर है, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा, और तौहीद का फोकस भी अमल पर है। अब ये अमल क्या है? ये जो 5 फुट का 6 फुट का जो इंसान अल्लाह ने पैदा किया है, ये एक अमल की मशीन है। ये जाहिल हो फिर भी अमल करता है, ये आलिम हो फिर भी अमल करता है, ये गुमराह हो फिर भी अमल करता है। इससे अमल सादिर हो रहे हैं। ये हिदायत पर हो फिर भी अमल सादिर हो रहे हैं। ये पत्थर की तरह कभी नहीं रह सकता कि इससे कोई अमल ना निकले। ये ऐसा जिस्म है, ये ऐसा एक डिवाइस बनाई अल्लाह ताला ने इस जमीन पर।
वो कहाँ से अमल सादिर होते हैं? हमारे जिस्म से। हमारे जिस्म में 3 एयर बेस हैं। अमाल क्योंकि ऊपर उड़ते हैं फौरन, जो ही हम अमल करते हैं, व इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब, अल्लाह की तरफ अच्छे अमाल जाते हैं हमारे, और फौरन फरिश्ते भी रिकॉर्ड बनाते हैं। हमारे जिस्म में 3 एयर बेस हैं जहां से अमल सादिर होता है और फौरन अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाता है, या अपने वक्त पर पेश होता है। 3 है, एक है जुबान, दूसरा दिल, और तीसरा जाहिर, हमारा जाहिर, हाथ पांव, हवा से खमसा कह लें, यानी दिल, जुबान और जाहिरी आज़ा, जाहिर हमारा। जुबान से हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जुबान का कौल है। और अमाल जो है वो 2 किस्म के, कौल और फ़ेल। कौल और फ़ेल, इबादत 2 किस्म की हैं। इबादत, वो अमल जो इबादत बनता है वो 2 तरह के, कौल और फ़ेल। कौली इबादत और फ़ेली इबादत। ये थोड़ा तवज्जो से बस ये नोट कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी ये चीज़। हमारे पूरे जिस्म से 2 किस्म के अमाल निकलते हैं, कौली और फ़ेली, और यही इबादत बन सकते हैं अगर हम तौहीद को समझ लें। कौली जो इबादत है उसका ताल्लुक ज़ुबान से है और दिल से है, और जो फ़ेली इबादत है उसका ताल्लुक दिल से है और ज़ाहिर से है। आपने सुना होगा ज़ाहरी अमाल और बातिनी अमाल, बंदे का ज़ाहिर और बातिन। बातिन क्या है? वो दिल है हमारा। दिल में बहुत सारे अमाल हैं जो ज़ाहिर से भी ज़्यादा हैं। और ज़ाहिर के अमाल मतलब ज़ाहिरी अमाल, आपने तवाफ़ किया खाना काबा का, ये ज़ाहिर है, आपका ज़ाहिर अमल है ये। आपने अल्लाह के लिए कुर्बानी की, ज़ाहिर है। आपने ज़ुबान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़ुबान का कौल है। लेकिन इस अगर दिल की तस्दीक से कहा है आपने, ये तो हिंदू भी कह सकता है, हमारा पड़ोसी क्रिश्चियन है वो भी कह सकता है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुबान से खाली कहने से वो क्या, वो उस मंत्र थोड़ा कि वो बस एकदम शू हो गया। नहीं, जुबान से कहा है, दिल से तो नहीं कहा ना। दिल से कब कहेगा? जब उसे पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं, और फिर उसके बाद वो तस्दीक करे दिल कि हाँ मैं भी मानता हूं कि नहीं है कोई इबादत के लायक माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। एक आदमी कह तो रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, और लेकिन डंके की चोट पर गैरुल्लाह को पुकारता, कहता है वो मेरा मुश्किल कुशा है। और मुश्किल में किसी को पुकारना, उस मुश्किल में जिसका हल इंसान के पास नहीं है, किसी को भी पुकारना, ये इबादत है। तो उसका ये कलमा जो मुंह से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये गवाही जुबान से तो ठीक है हमने सुन ली, लेकिन उसका अमल, यही जुबान उसकी मुखालफत कर रही है। उससे बात की जाए भाई ये गलत है, वो फौरन जो है मुनाजरे पर उतर आता है। मतलब उसने दिल से इस बात को तस्लीम नहीं किया कि नहीं है कोई माबूद बरक सिवाय अल्लाह के। अगर आप मुंह से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल आपका मानता है, तो दिल का मानना, किसी भी बात, अल्लाह और उसके रसूल की बात का दिल का तस्लीम करना, तस्दीक करना एक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की, ये दिल का कौल है, दिल का कौल है यह। और जुबान से जब आप इकरार कर देते हैं जो जुबान का कौल है, तो कौली इबादत की ये मिसाल आपके सामने आ चुकी कि कौली इबादत किस तरह होती है बंदे की, कि आप मुंह से कहें जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है, मुंह से उसका इजहार करें जब करने का वक्त आए, और दिल से उसकी तस्दीक करें, तो ये दिल का इकरार है। दिल भी इकरार करता है जिस तरह जुबान इकरार करती है, तो दिल का जो इकरार है वो दिल का कौल है, वो भी कौली इबादत में आता है। अब है फेली इबादत। फेल 2 तरह का है, करना और छोड़ देना। मतलब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, ये हो गया करने का फेल। और कहा वला तुशरिकू बिही शैआ, उसके साथ शरीक मत करो। और वो अमल सारे छोड़ देने हैं जो जिनमें शिरक होता है,
जब हम कोई काम करते हैं तो ये भी इबादत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में करते हैं, जब कोई काम छोड़ते हैं तो ये भी इबादत, क्या हराम समझ के छोड़ते हैं, मकरूह समझ के छोड़ते हैं। कोई काम करते हैं या तो फर्ज समझ के करते हैं, या सुन्नत समझ के करते हैं, या जायज समझ के करते हैं। तीन है करने के काम, तीन दर्जे के, फर्ज दर्जा, सुन्नत दर्जा जिसको मुस्तहब भी कहते हैं, और जायज मुबाह जिसे कहते हैं। जैसे रोटी खाना, अभी आपका दिल करता है पानी पीने का, इसके लिए फतवा लेने की जरूरत नहीं कि मेरे लिए जायज है कि नाजायज है, फर्ज है क्या सुन्नत है। आप जितना पानी की बजाय आप कोल्ड ड्रिंक ले लें, जूस पी लें, जो मर्जी पिए, चाय पी लें, कहवा पी लें, कॉफी पी लें, ये जायज मुबाह है। लेकिन आपका जो ये कॉन्सेप्ट है माइंड सेट के कि कहां से लेते हैं आप जायज नाजायज का कॉन्सेप्ट, ये आपका अकीदा बताता है। आपका अकीदा कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई जायज नाजायज नहीं कर सकता, ये आपकी तौहीद है, ये आपकी तौहीद है। और ये नजरिया आपका इबादत है कि कभी लोगों की बातों में आकर आपने शराब को चखा तक नहीं। कुछ लोग पीते हैं लेकिन उनका अकीदा वही है कि ये हराम है, तो वो गुनाहगार मुसलमान है वो मुसलमान। तौहीद उनकी तौहीद भी है, जब वो कहते हैं कि हराम है ये उनकी तौहीद है, और जब वो पी लेते हैं तो ये उनका गुनाह है, कबीरा गुनाह है कि उन्होंने एक चीज मना करने के बावजूद उन्होंने उसको पिया, इर्तिकाब किया, ये कबीरा गुनाह है और ये फिस्को फजूर में आता है। तौबा के बगैर माफ नहीं होता कबीरा गुनाह। तो फेली इबादत दो किस्म की है, करना छोड़ना। अब ये जाहिर बातन के हिसाब से दो किस्म की आमाल जो हैं उनका दिल से भी ताल्लुक है और आमाल उनका जाहिर से भी ताल्लुक है। अब दिल के अमाल कौन से हैं? जैसे मोहब्बत इलाही, ये दिल का अमल है और ये इबादत है। कैसे? कितने ऐसे लोग हैं जब उनके घर में खुशी होती है, कोई अल्लाह ने ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया, बच्चा पैदा हो गया, जाकर फौरन किसी गैरुल्लाह के नाम के नजर न्याज देग चढ़ाकर आते हैं खुशी में, उस पीर की मोहब्बत में। और मुसलमान को जब भी कोई नेमत नसीब होती है फौरन जुबान से भी और अमल से भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह तो मतलब अल्लाह की मोहब्बत है इसे, और उस मोहब्बत की वजह से अल्लाह की नाफरमानी करते हुए उसे हया आती है। ये जो आपके अंदर शर्म है कि नमाज नहीं छोड़ने की जरूरत हो रही, दूसरे सो रहे हैं, सारा मोहल्ला सोया हुआ, सुबह अंधेरे में उठकर मस्जिद को जा रहे हैं और काम काज छोड़कर डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं ऑफिस लाइफ में और घर की लाइफ में। एक नमाज खत्म होती दूसरी शुरू, दाढ़ी रख लिया कांटों की तरह चुभ रही है, लेकिन आपको हया आ रही है कि मैं क्यों छोड़ूं। बंदों से ज्यादा, बंदों की बजाय अल्लाह से ज्यादा हया आ रही है कि क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को मैं अपनी मनमानी करके। ये मोहब्बत इलाही है और ये इबादत है, ये तौहीद, ये दिल का अमल है, ये बातिन है। और अगर यही जज्बा किसी गैरुल्लाह के साथ है तो ये अल्लाह की मोहब्बत में शिरक है। इसी तरह दिल का अमल है खौफ। आपसे नमाज में सुस्ती हो गई, जानबूझकर मेहमानों की वजह से या बस लापरवाही हो गई, अब परेशानी हफ्ता भर नहीं गई कि क्या होगा, मैंने नमाज में सुस्ती कर दी, जमात जाने दी। मुसलसल दिल में, दिमाग में ये ख्याल खाए जा रहा है, मैंने ये क्यों किया यार, मैंने रोजा छोड़ दिया, या यानी अजर का काम था, अलग नफल था, तरावी थी, तरावी छूट गई। तरावी छोड़ने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता, रोजा आपका सही है। एक सवाब का जो मौका था अपने हाथ से खो दिया, उससे दिल में एक हसरत और अफसोस ये क्यों आया कि आपको शर्म, आपको खौफ आ रहा है अल्लाह ताला से। अल्लाह का जो खौफ है आपके दिल में, उसकी वजह से आपको एक शर्म महसूस हो रही है और हसरत हो रही है कि काश ऐसा ना करता मैं, काश मुझसे ये सुस्ती ना होती, काश मैं ये गुनाह ना करता। तौबा की तरफ नदामत होती है। ये इबादत है, ये बातिन, ये तौहीद है।
اب جس بندے کو یہ توحید سمجھ آ جائے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا, وہ کسی کا حق کھائے گا, وہ بد اخلاقی کرے گا. تو نبیوں نے تربیت اس نہج پہ کی ہے, اس طریقے سے کی ہے. لا الہ الا اللہ میں جب ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود ہے برحق, معبود کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے آپ ڈرتے ہیں, جس سے آپ خوف کرتے ہیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جس پر آپ توکل رکھتے ہیں, جس کے آپ سے گناہ ہو جائے فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معاف نہیں کرنے والا. جس کی خشیت آپ کے دل میں جوں جوں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے خشیت میں اضافہ ہوتا ہے. خشیت, خوف اور رہبت تین الفاظ ہیں, یہ عبادت کی اقسام ہیں. اردو میں ان کا ترجمہ خوف ہی کیا جاتا ہے کیونکہ اردو میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ عربی کا ترجمہ کر سکے, صرف گزارا کرتی ہے اردو, کوئی بھی لینگویج ہے. خشیت وہ خوف الہی ہے جو اس کی معرفت کے بعد نصیب ہوتی ہے. دیکھیں آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے اور ایک ایس ایچ او سامنے آیا ہوا ہے, آپ ایس ایچ او کی وجہ سے نروس ہوئے جا رہے ہیں, تھوڑا آپ کو خوف ہے کہ کہیں کوئی میرا وارنٹ تو نہیں ہے, اور بچہ اس سے نہیں ڈر رہا, آپ سے ڈر رہے, کیونکہ بچے کو آپ کا پتہ اس کا نہیں پتا. بڑا ہو کر جب اسے پتہ چل جاتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے اسماء و صفات اور توحید سے نصیب ہوتی ہے, توحید کے علم کے ساتھ. اور جس قدر اس میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, اور جوں جوں اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک اللہ کی ہیبت, اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تعظیم کے ساتھ, اور یہ عبادت بن جاتی ہے. اسی لیے کہا یہ جو قسم ہے نا عبادت کی, اور یہ دل کا عمل ہے, یہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے لوگ ہیں. یہاں سرٹیفکیٹ کی بات نہیں ہو رہی, جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے دورہ حدیث کا, عالمیت کا. علم والے لوگ کہا گیا ہے, وہ پہلی کلاس کے بھی ہو سکتے ہیں, وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے کبھی کالج, یونیورسٹی, مدرسہ دیکھا بھی نہیں, لیکن علم کے لیے شرط ہے علماء کی صحبت. علم کے لیے بلڈنگوں میں بیٹھنا شرط نہیں ہے, علماء کی صحبت سے علم آتا ہے, علماء سے علم آتا ہے. تو علماء کہیں بھی نصیب ہو جائیں, مسجد کے امام عالم ہو, اس مسجد کے نمازیوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس سے گاہے باگاہے وقتاً فوقتاً ہر ملاقات میں کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے رہتے ہیں. یہی تو علم ہے. اور یہ علم جو ہے, اس علم اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے جو علم والے لوگ ہیں, انما یخشی اللہ, اللہ سے خشیت رکھنے والے تو ہیں ہی یہ لوگ. انما نہیں ہے سوائے اس کے کہ ڈرتے ہیں جو اللہ سے, وہ اللہ کے بندوں میں سے علم والے. اور علم لا الہ الا اللہ علم ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کوئی بھی مسلمان ہے چاہے وہ ٹماٹر بیچتا ہے سبزی منڈی میں, اس کا تعلق علم سے ہے, جاہل نہیں ہوتا مسلمان. کیونکہ ہم پر سب پر فرض ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی جانیں, اس میں جو نفی اور اثبات ہے اس کی حقیقت بھی سمجھیں. یہ تو میں نے ان باتوں کی مثال دی جن کا تعلق دل کے اعمال سے ہے. ظاہر میں آپ کی مثال مختصر دی, نماز آپ نے پڑھی, قرآن پڑھتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ ظاہری اعمال ہیں. خلاصہ پھر ہم واپس آ جاتے ہیں کہ دنیا سے نکلتے وقت ہمارے پاس جو پونجی ہوگی وہ ہے عمل. اور عمل جو ہے اس جسم سے 3 جگہوں سے صادر ہوتا ہے, دل سے, زبان سے اور ظاہر سے. اگر ہم اس کو اپنے لیے کارآمد بنانا چاہتے ہیں ہمارے اعمال, تو احکام شریعت کے پابند ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. کہ ہمیں دیکھنا ہوگا ہم اعمال کرنے کے جو ہیں وہ ہیں 3 قسم کے, فرض, مستحب یا سنت, اور جائز. جائز ناجائز کا کنسیپٹ آپ کو اپنا کلیئر کرنا ہوگا کہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں تحاکم الی اللہ و الی رسولہ. یہ توحید ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا ہے ہم کبھی بھی اس کو حلال نہیں مان سکتے. دنیا کے ادھر کی ادھر ہو جائے, جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا حلال, ہم اسے حرام نہیں کر سکتے.
یہ کنسپٹ آپ کا کلیئر ہے اور اس کی بیس پر آپ زندگی بسر کرتے ہیں، الحمدللہ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ توحید پر ہیں، اور آپ کا یہ جو قدم اٹھانا، کبھی قدم روکنا، کبھی رک جانا، کبھی لپکنا کسی چیز عمل کی طرف، یہ سارا آپ کا یہ عمل لکھا جا رہا ہے، یہی عمل آپ کا آپ کو کامیاب کرے گا آگے۔ اور حرام ہے، حرام سے بچنا ہے، تو مطلب یہ اعمال چاہے چاند پر بھی چلے جائیں، ہم اعمال سے جان نہیں چھڑا سکتے، عمل ہمارے ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں ہمارے جسم سے، تو اس کو عمل کو اپنے لیے فائدہ مند بنانے کا نسخہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی تفسیر پڑھیں، توحید کا علم یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آج موضوع میرا کچھ اور تھا، لیکن اس کی طرف اللہ نے شرح صدر کر دی تو اس کی طرف زیادہ میں نے ٹائم لگا دیا۔ ہمارا موضوع وحی کا آ رہا ہے، آج بھی وحی کے بارے میں گزری ہے آیات اور آگے بھی آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ وہاں مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔